Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So today we are going to continue differentiation chapter. Okay. So today's topic is minimization and maximization function. Okay. Whenever in the question, if it is given to find the minimum value and the maximum value, how to find it. Okay. In the question, many times it happens like it is given only minimum value, or it is given only maximum value. It is given both, find the minimum value also and maximum value also. Whenever in any question, if it is given to you to find the minimum or the maximum value, then you have to find this sum with a method which will be having 5 steps. It will be done with a method which will be having 5 steps. Okay. As you already know, the question can be in the fx form or the question can be in the y form. Yes, and we have already learned how to find the first order derivative and how to find the second order derivative. If the question is given in the fx form and if I have to find the first order derivative, what do we write instead of f dash? We'll write instead of fx we will write f dash x. What is f dash x? F dash x means we are finding the first order derivative. And how do we find the first order derivative? Standard rule. What is the standard rule? If we have any raise x raised to n, माने कोई भी raise है n के ऊपर, then the raise will come forward and वहाँ पे एक raise कम हो जाएगा. माने ये कैसे होगा? The n will come down and x will be n minus 1. This is the standard rule. कि अगर derivative आपको solve करना है तो क्या होगा? x के ऊपर कोई raise होना चाहिए and the raise will come forward and the जो भी है उस value के ऊपर एक raise कम हो जाएगा. और अगर कोई कांस्टेंट है, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका आंसर हमेशा हमेशा 0 रहता है. Okay, so if we have x raised to 5, तो 5 will come forward and x will be 5 minus 1, that is 5x raised to 4. But if it is 5x plus 2000, any big number, 2000, 20,000, 2 lakh, whatever it is, but if the value is constant, the value of the derivative of it will be 0. So यहाँ पे भी again the answer will be what? 5x raised to 4 only. Understood? This is the question when it is given first order derivative. माने आपने first order derivative निकाल दिया. अगर आपको उसका second order derivative निकाला हो तो वो कैसे find करोगे? जो derivative निकाला उसका फिर से derivative निकालेंगे. And what do we call it as? f double dash x if it is in the form of fx. वैसे ही अगर क्वेश्चन y के फॉर्म में दिया है and we have to find the first order derivative, how do we do it? We do it by dy by dx. y वाला क्वेश्चन दिया है, पूरा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो होगा कौन सा? dy by dx. अगर we have to find the second order derivative when the question is y वाला form, how will we do it? Again d square y by dx square. ये first order derivative और ये हो जाएगा second order derivative. माने till now you already know if the question is given in the fx form how to find first order and how to find second order. If the question is given in the y form how to find first order derivative and how to find second order derivative. Question कौन से form में होगा? या तो fx के फॉर्म में होगा या तो y के फॉर्म में होगा. Is it clear? और आगे आप लोग लर्न करोगे questions where it will be questions will be given on marginal revenue, marginal profit, marginal what we say cost. So these 12 questions you will get further. तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके फॉर्म में क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए. For now we will learn if the question is in the y form and if the question is in the fx form how to solve it. Okay, so the question is given like this. The question is 2x cube plus 3x square minus 12x minus 4 and you have to find the maximum value and the minimum value. As I told you, जब भी आपको maximum और minimum value find करनी है तो आपको 5 steps follow करने होंगे. कितने steps follow करने होंगे? 5 steps follow करने होंगे. ठीक है. अगर हमारा question जो था वो किसके फॉर्म में था? y वाले फॉर्म में था. Yes, हमें क्वेश्चन दिया है y वाला फॉर्म. क्वेश्चन इज गिवन टू यू एंड इफ यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू, एज आई टोल्ड यू वी हैव टू सॉल्व इट थ्रू मेथड विच इज हैविंग 5 स्टेप्स. सबसे फर्स्ट स्टेप उसका है you have to find, the first step is you have to find the first order derivative. What you have to find? First order derivative. मानी आपको फाइंड करना है dy by dx.
है ना, y वाला फॉर्म है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, dy by dx। फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप, आज स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू टेक dy by dx इज इक्वल्स टू 0। यू हैव टू टेक dy by dx इज इक्वल्स टू 0, माने जो भी आपका इक्वेशन बना इक्वल्स टू 0 ले लो और उसकी वैल्यू फाइंड करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। दो वैल्यू x की आपको मिलेगी और ये जो दो वो वैल्यू मिली ना उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज स्टेशनरी पॉइंट। द फर्स्ट स्टेप वाज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द सेकंड स्टेप वाज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 और वो इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दो वैल्यूज मिलेगी x की और वो दो वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, we call it as stationary point. Here is our second step. Then we have third step where you have to find the second order derivative. Second order derivative माने क्या, हमने dy by dx ढूंढ लिया, अब हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा d square y by dx square. इज इट क्लियर, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 3 स्टेप्स हो गए, मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने जो थर्ड स्टेप किया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, वहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी, आपको पुट करनी है स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू। आपको दो वैल्यूज मिली थी स्टेशनरी पॉइंट की, वो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे एंड देन यू विल कंपेयर इट विद 0। जो भी वैल्यू आपको मिली यू विल कंपेयर इट विद 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। आपको मिलेगी, ऐसा ये फोर्थ स्टेप बोल रहा है, पर टू कंफर्म कि हमें सही में वैल्यू मिली कि नहीं मिली, वी हैव टू डू द फिफ्थ स्टेप एंड योर फिफ्थ स्टेप इज वॉट एवर द ओरिजिनल क्वेश्चन इज गिवन टू यू, इन दैट ओरिजिनल क्वेश्चन यू हैव टू पुट द स्टेशनरी पॉइंट्स, you have to put the stationary points in the original question. You have to put the stationary point in the original question और आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग ने कम वैल्यू डाली थी, अगर -3 डाला तो उसमें हम लोग देखेंगे वैल्यू जो मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, और +2 डाला उसमें हम लोग को जो वैल्यू मिल रही है वो छोटी मिल रही है। माने you got 2 values and one value will be minimum value and the other will be maximum value. So this is a 5-stage step that we will do. Okay, let's solve one question. Yes, find the minimum and maximum value of the question 2x cube plus 3x square minus 12x minus 4. सबसे पहला वाला स्टेप मुझे बता दो, फर्स्ट स्टेप कौन सा था? We have to find the first order derivative. माने if the question is fx form, we have to find f dash x and you have to find the derivative of this question will be, ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। Yes? Yeah, it is 6x square plus 6x minus 12, x वहां पे चला गया और जो -4 है वो कांस्टेंट है तो -4 का आंसर आ जाएगा 0। कैन यू सी, हमने इक्वेशन बना दिया, हमने बनाया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ हमारा स्टेप्स नंबर 2, वी हैव टू टेक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, माने f डैश x इक्वल्स टू 0, माने 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, उसका आंसर क्या आएगा? 0। अब आपको ढूंढना है क्या? वी हैव टू सर्च द स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को स्प्लिट करना पड़ेगा, एज वी यूज्ड टू डू इन द लिमिट चैप्टर, राइट? बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्प्लिट, हम लोग को दिख रहा है कि सारे नंबर डिविजिबल बाय 6 है, सारे 6 के टेबल में जा रहे हैं। यस, तो इफ आई राइट ओवर हियर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इट इज वन एंड द सेम। ओके, इट इज वन एंड द सेम। नाउ स्प्लिट किसको करना पड़ेगा? 2 को स्प्लिट करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन बना? 2 और 1 बनेगा। अगर यहाँ पे साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, मानी छोटे में माइनस का साइन आएगा और बड़े में प्लस का साइन आएगा, मानी माइनस भी हो गया और माइनस का साइन भी नहीं लगा। Okay, here it will be x square plus 2x minus x minus 2 will be equals to 0. What is common in between these two? X is common. What will be left? X plus 2. Minus, do we have anything common? No. Here it will be x plus 2. And why did I take plus? अब ये minus और plus इसको minus बनाएगा. Here it will be 0. What is left? X minus 1 equals to 0. Now, if I want to find the value of x, अगर यहाँ पे x minus 1 is equals to 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, यहाँ पे 0 है, +1 हो जाएगा तो आंसर आएगा
1, and if this is x plus 2 equals to 0, here it will be 0 minus 2, so x value of x will be. Now these two values you got, what are these two? Yes, these two are stationary points. What are these stationary points? मानी यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है. स्टेप 1 था हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. अब हम लोग करेंगे कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 3. व्हाट इज इट? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. माने ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला उसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डैश x करेंगे. यस, यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस 6, क्योंकि x अकेला है तो ओनली 6 विल बी रिमेनिंग एंड माइनस 12 विल बी 0. इज इट इज कॉन्स्टेंट, इट विल कम 0. दिस इज माई third step. My third step was what? My third step was second order derivative. Moving towards the fourth step. अभी fourth step में आपको क्या करना है? Stationary points put करना है किस में? Second order derivative में. Stationary points हमारे कौन से हैं? x equals to 1 है और दूसरा है x equals to minus 2. अब उसको आपको put करना है stationary points आपको second order derivative में. 2 into 12 into 1 into 6, that is 12 plus 6, that comes to 18. अब मुझे ये बताओ 18 greater than 0 है कि less than 0 है? Greater than 0 है. अगर greater than 0 है तो I told you अगर greater than 0 होगा तो वैल्यू जो मिलेगी वो होगी मिनिमम. वैल्यू कौन सी मिलेगी? मिनिमम. चलो यहाँ पे भी पुट करके देखते हैं. 12 into minus 2 plus 6, 12 into 2 is minus 24 plus 6, that will be minus 18. Minus 18 is greater than 0, less than 0? It is less than 0. माने यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी. और वो मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी ये देखने के लिए हमें स्टेप नंबर 5 करना है. एंड द स्टेप नंबर 5 इज पुटिंग दिस स्टेशनरी पॉइंट्स इन माई ओरिजिनल क्वेश्चन. माई ओरिजिनल क्वेश्चन वॉज वॉट? सॉरी, इट इज fx फॉर्म. द ओरिजिनल क्वेश्चन वॉज fx is equals to 2x cube plus 3x square minus 12x minus 4, and now here you have to put the value of 1. तो 2 into 1 का क्यूब प्लस 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 12 into 1 minus 4. यहाँ पे 1 का क्यूब जो भी होगा आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, प्लस 3 minus 12 minus 4. Now when we plus 2 plus 3 is 6, 6 minus 12 is minus 6 minus 6 minus 4 minus 10. Minus 10 आ रहा ना? Minus 11. Okay, fine. Okay, the answer हमारा आ गया यहाँ पे minus 11. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू आता है so that we can understand which one is maximum, which is minimum. fx का क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4. यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है? -2. यहाँ पे आपको x इज इक्वल्स टू -2 डालना है. यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 डालेंगे. -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 12 -2 -4. नाउ सी 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. 2 टू 4 टू 8 एंड प्लस इंटू तो यहाँ पे -16 हो जाएगा. 3 टाइम्स है माने माइनस का साइन आएगा. ठीक है, चलो यहाँ पे 2 into 2 4 एंड 4 3 जा प्लस 12. क्यों? क्योंकि 2 का 2 बार था तो वो साइन हट गया. चलो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्या आ जाएगा? प्लस 24 -4. तो हमारा जो आंसर आएगा वो है क्या आया आंसर? 16. चलो हमें आंसर आया 16. अब मुझे ये बताओ, हमने पहले लिखा था, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न दैट इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू. अब मुझे बताओ -11 और 16 में मिनिमम कौन है? -11. और हमने तो पहले भी लिख लिया था ना कि माइनस अगर हम लोग 1 डालेंगे तो वैल्यू कौन सी आएगी? मिनिमम. एंड वी गॉट द मिनिमम वैल्यू. फिर हमने लिखा था कि अगर -18 आया था हमारा, माने अगर -2 डालेंगे तो वैल्यू हमारी मैक्सिमम आएगी. तो वी गॉट द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 16. सो आवर मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? -11. आवर मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? 16. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. कितने स्टेप्स का सम था? 5 स्टेप्स का सम था. क्वेश्चन किसके फॉर्म में था? fx के फॉर्म में था. अगर क्वेश्चन fx के फॉर्म में है
तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से, एंड इफ इट इज इन द y फॉर्म देन आल्सो वी हैव टू सॉल्व विद द सेम मेथड। ओके, अब ये क्वेश्चन y के फॉर्म में है। कौन से स्टेप्स लगेंगे? पांचों स्टेप्स अगेन लगेंगे। मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट वाला स्टेप हमारा है y वाला क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा dy by dx। हमें जो है रेज नीचे आ जाएगा, सो 2 into 3 is 6x square minus 15 into 2 that will be 30x, और यहाँ पे कौन बचेगा? सिर्फ 36 बचेगा। 12 तो कांस्टेंट है तो उसका आंसर आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, माने dy by dx is equals to 0। 6x square minus 30x plus 36 is equals to 0। अगेन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। बट बिफोर स्प्लिटिंग द इक्वेशन कैन वी शॉर्टन द इक्वेशन? yes, how? because every number is divisible by 6, so we can shorten it by x square minus 5x इक्वल्स टू 0। जो ऊपर वाला है अगर आप उसको नहीं शॉर्टन करोगे देन ऑल्सो द आंसर विल बी सेम ओनली। बस हमने क्यों कर दिया? टू सिंप्लीफाई इट। ओके, नाउ इक्वेशन किसका बनाना है? आपको 6 को स्प्लिट करना है। किसमें होगा? 2 और 3 में। अब यहाँ पे प्लस का साइन वन, दोनों में माइनस का साइन होना चाहिए। -2 -3 क्या बनाएगा? तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 विल इक्वल्स टू बी 0। इन दोनों में कॉमन कौन है? x कॉमन है, x -2 -3 कॉमन है। हमें मिली वैल्यू x -3 और हमें मिली वैल्यू x -2 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। कैन यू सी बोथ द वैल्यूज आर व्हाट? बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव। हो सकता है दोनों पॉजिटिव आए, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, हो सकता है दोनों नेगेटिव आए, लेकिन एक वैल्यू बड़ा आएगा एक वैल्यू छोटा आएगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग व्हाट? वी आर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू एंड वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो दो वैल्यूज आएगी जो एक बड़ा और एक छोटा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? क्या फाइंड किया हमने? हमने सेकेंड स्टेप में स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड कर दिए। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, माने इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एंड डेरिवेटिव कैसे निकल गया? डी स्क्वायर वाई बाई, चलो क्या आ जाएगा? 12x माइनस 30। 12x माइनस 30, x अकेला है वो हट जाएगा, कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। चलो फोर्थ स्टेप की तरफ चाहिए। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स पुट करते हैं। कहां पे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो हमें स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से पुट करना है? x इज इक्वल्स टू 3 पुट करना है और x इज इक्वल्स टू 2। दोनों को पुट करके देखना है कि वैल्यू मिनिमम आ रही है या फिर मैक्सिमम आ रही है। लेट्स सी, हमारा इक्वेशन है 12 इंटू 3 माइनस 30। 12 इंटू 3 विल बी 36 माइनस 30, दैट विल बी 6। नाउ इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। जब भी ग्रेटर देन 0 आएगा तो वैल्यू कौन सी आएगी? मिनिमम आएगी। चलो विल कंफर्म इन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे 12 इंटू 2 माइनस 30, 12 इंटू 2 इज 24 माइनस 30, दैट कम्स टू -6 विच इज लेस देन 0। माने अगर लेस देन 0 आएगी तो वैल्यू आ जाएगी हमारी वैल्यू हमारी आ जाएगी मैक्सिमम। एंड टू सी इफ द वैल्यू इज मिनिमम और मैक्सिमम वी हैव टू डू द नेक्स्ट स्टेप, एंड आवर स्टेप नंबर 5 is putting the stationary points in our original question. So original question was given in the y form and the question was 2x cube minus 15x square plus 36x plus 12, and first of all you have to put the value of 3. अब x equals to 3 डाल के देखेंगे। 2 into 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 12। चलो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू विल बी 54 माइनस 3 3 9 एंड 15 इंटू 9 विल बी 135 प्लस 36 इंटू 3 विल बी 108 and plus 12. Kindly do the calculation. 54 minus 135 plus 108 plus 12. It will be positive 39.
लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू कमिंग दिस साइड. सेम इक्वेशन में आपको पुट करना है x इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 12. Yes. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are minus 4 into 5, that will be 60, and plus it will be 72 plus 12. 16 minus 60 plus 72, answer is coming 40. हम लोग ने ऑलरेडी लिखा था कि अगर हम लोग वैल्यू x की 3 डालेंगे तो हमें मिनिमम मिलेगी. अब 39 और 40 में मिनिमम कौन है? 39 है. यस, सो दिस गॉट कंफर्म कि अगर हम लोग वैल्यू हम लोग ने ली 3 तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे हम लोग ने लिखा था मैक्सिमम तो हमें वैल्यू मिल गई मैक्सिमम. तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है एंड मैक्सिमम वैल्यू 40. Is it clear? This is minimization and maximization function where we have to find the minimum value and maximum value. कौन से कितने steps? हमें 5 steps follow करने हैं and we can easily find out the minimum and maximum values. Okay? Okay. Thank you so much.